উপাচাৰ্য মহোদয়, পৰীক্ষাসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰক মহোদয় তথা আজি অনুষ্ঠানটোৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা ডক্টৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ তিৱাৰী মহোদয়, বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নলবাৰীৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী উপাধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ আৰু অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 1893 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিবেকানন্দই চিকাগোত যি ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল, সেই ভাষণ প্ৰদানৰ পিছৰে পৰা বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বত পালন কৰি অহা হৈছে। আজি বিশ্ব ভাতৃত্ব দিৱস, এই দিৱস আমি উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নলবাৰীৰ উদ্যোগত আৰু কুমাৰ ভাস্কৰ সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত এয়া আমি এটি মংগলাচৰণেৰে আজি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। মংগলাচৰণ কৰিব বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে। আমাৰ নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ কিছু পলমকৈ এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলগা হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক সকলোৰে ওচৰত আমি ক্ষমা বিচাৰিছো আৰু আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য মহোদয়, তেখেতক আদৰি আনিব চিৰঞ্জীৱ অধিকাৰী ছাৰে। ডক্টৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ তিৱাৰী ছাৰক আদৰি আনিব অধ্যাপক ডক্টৰ মুনীন শইকীয়াদেৱে। আমি মঞ্চলৈ আদৰি আনিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো অৰ্চনা দেৱী, ডক্টৰ অৰ্চনা দেৱীক অনুৰোধ জনাইছো বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য মহোদয়ক ক্ষমা কৰিব, ভাইচ প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ক আমি মঞ্চলৈ আনিবৰ কাৰণে দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ মালব্যজী, ভাইচ প্ৰিন্সিপাল অফ BKB নলবাৰী, আমি তিনিজনকে আদৰণি জনাইছো আৰু এতিয়া বন্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি উপাচাৰ্য মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো আৰু আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰ মহোদয় আৰু ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, এই তিনিজনকে আমি বন্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। আদৰণি পৰ্ব আমাৰ কুমাৰ ভাস্কৰ সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য মহোদয়ক আদৰণি জনাব
বিকেবি নলবাৰীৰ শিক্ষয়িত্ৰী পূৰ্ণিমা বৰগোহাঁই। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰক তথা আজি অনুষ্ঠানটোৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা ডক্টৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ তিৱাৰীদেৱক আদৰণি জনাব বিকেবি নলবাৰীৰ শিক্ষয়িত্ৰী গীতাৰ্থী গগৈয়ে। বিকেবি নলবাৰীৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ মালব্যদেৱক আদৰণি জনাব জ্যোতিষ কলিতাই। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ আদৰণি পৰ্ব আমাৰ সন্মানীয় পঞ্জীয়ক মহোদয় এতিয়ালৈকে বিশেষ কাম এটা ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই। খন্তেক পিছত আহিব, আমি তেতিয়াই সেই আদৰণি পৰ্ব আমি আদৰণি জনাম। মই অনুৰোধ জনাম কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য মহোদয়ক ৱেলকাম এড্ৰেছ দিবৰ কাৰণে। Now I request to Honorable Vice Chancellor Sir to deliver his welcome address. सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य विश्व भ्रातृत्व दिवसस्य आचरणं वयं कुर्वन्तः स्मः। यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे। अत्र विशेषरूपेण अस्माभिः स्वागतं क्रियते विवेकानंद केन्द्र विद्यालय नलबारी तत्रत्याः अध्यापकाः प्राचार्याः सर्वेपि सम्भूय अत्र आगत्य विश्व भ्रातृत्व दिवसस्य आचरणं कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत विश्वविद्यालये करणे इति तैः उक्तम्, अस्माभिः झटिति अङ्गीकृतम्। अयं कश्चन विशेष दिवसः 1993 मध्ये सेप्टेम्बर् मासस्य 11 दिनाङ्के स्वामी विवेकानंद महोदयः विश्व धर्म संसद पार्लिमेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इति कार्यक्रमे भारतस्य प्रतिनिधिः आसीत्। He was representing India, भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण सर्वेपि तस्य पूर्वं ये वक्तारः आसन्, उससे पहले जो भी वक्ता थे वो लोग क्या करते थे, आते ही लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे बोलते थे। पहली बार दुनिया के विश्व के बहुत बड़े मंच पर स्वामी विवेकानंद जो भारत की पूरा संस्कृति को विश्व भर में फैलाने के लिए जहाँ भी जाते थे तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार उनका ध्येय था। तो भारत में हमारे यहाँ एक विश्व बंधुत्व भावना जो है बहुत पुराना है। एक बहुत बड़ा श्लोक है, आप लोग शायद जानते हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। जो आदमी सोचता है ये मेरा है, ये दूसरा है, ऐसा जो सोचता है वो बहुत छोटा आदमी होता है। पर जो आदमी सोचता है कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब मेरे बंधु हैं, ऐसे जो सोचता है उसका उदार चरित, ऐसे आदमी बहुत अच्छा होता है। तो हम सभी को उदार चरित वाले होना चाहिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, भाइयों और बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ऐसे उन्होंने जब बोला तब सब लोग खड़े थे उधर। मैं पहली बार सुने थे, किसी ने भी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे ही तो रूटीन हुआ था, आर्टिफिशियल जैसे लगता था। जब इन्होंने कहा भाइयों और बहनों, ये एक शब्द सुनकर पूरे पार्लियामेंट में वहां जितने भी लोग थे वो सब खड़े होकर उठ गए।
तब से लेकर, इसीलिए ये शिकागो का जो स्पीच है स्वामी विवेकानंद जी का बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसमें अपने भाषण में सारी जो विभिन्न धर्म है उनमें समभाव और भ्रातृत्व भाव होना चाहिए। भगवान को प्राप्ति के लिए अलग अलग धर्म हो सकते हैं, मार्ग विभिन्न हो सकते हैं, फिर हमारा मन एक होना चाहिए। हम सब लोग पूरे विश्व को हम अगर सोचेंगे, पूरे अगर आप ब्रह्मांड को सोचेंगे, सूर्य के मतलब सूर्य में परितः इतने सारे 9 ग्रह हम लोग देखते हैं हमारा आरंभ से लेकर। एक बार वहां देखेंगे पूरा ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है, पृथ्वी एक छोटा सा। अब कंपेयर टू क्या जुपिटर जो गुरु ग्रह है, उसके सामने हमारा तो कुछ भी नहीं है। जैसे सर्षप कणा है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, मस्टर्ड जो होता है, उतना साइज का हम लोग है और उसमें हम लोग रहते हैं। हमारा इतना अहंकार होता है। एक बार आप देखिए सूर्य के अगल बगल में जितने भी सारे ग्रह घूमते हैं, हम कहाँ हैं इतने छोटे दुनिया में, और हमारे मन भी अगर छोटा होगा तो कैसे जी पाएंगे जब तक हमारा मन उदार नहीं होगा। सबको हम लोग नहीं, ये अपने लोग है। अयम निजः सर्वे भी अयम निजः सर्वे अस्मदीयः इति अस्माभिः चिन्तनीयं। तादृश विश्व संदेशम स्वामी विवेकानंद महोदयः 131 years बिफोर उन्होंने कहा था, फिर आज भी उसका प्रस्तुत है। इसीलिए हम लोग आज के दिन वो प्रसिद्ध उपन्यास जो उन्होंने किया था 1893 सितंबर 11 शिकागो, उसको याद करते हुए उन्होंने जो संदेश दिया उसको सिर्फ सुनना नहीं है, वो संदेश को अपना जीवन में पालन भी हमको करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा, विशेषकर मैं इन दिन में जो आया है हमारा वाइस प्रिंसिपल, एक बहुत भाग्य की बात है, ये वाइस प्रिंसिपल मेरे छात्र था। बीएड तिरुपति में जब पढ़े थे, बीएड संस्कृत मेथोडोलॉजी में मेरे छात्र, अब यहाँ पर आगे मुझे भी पता नहीं था, मैं यहाँ आ गया वो जानकर उन्होंने अपने स्कूल में बुलाया था, मैंने एक बार वहाँ गया था तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम हम विवेकानंद विद्यालय के साथ और भी कुछ करेंगे अगले दिनों में। अयम आरम्भः शुभारम्भः भवतु इति अहं प्रार्थयामि। भवतां विशेषरूपेण स्वागतं करोमि। वस्तुतः कोऑर्डिनेटर महोदयं अहं क्षमां प्रार्थयामि, विलम्बः जातः अद्य आगमने। महोदय महता कष्टेन कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतवान् अस्ति, तस्मै अपि स्वागतं व्याहरामि। एवम् अस्माकं तत्र परीक्षा नियन्त्रकः महोदय तत्र उपस्थितः अस्ति, तस्मै स्वागतं व्याहरामि। पुनः सर्वेपि ये अत्र पुरतः उपविष्टाः सन्ति, अस्माकम् अध्यापकगणाः, छात्राः, प्रियतमछात्राः सर्वेपि, यद्यपि भोजनसमयः तथापि सर्वं विस्मृत्य राष्ट्रत्वं कथं भवति, विश्वबन्धुत्वं तत् ज्ञातुम् अत्र समुपस्थिताः भवतां सर्वेषां पुनः एकवारं स्वागतं व्याहृत्य अत्रैव विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। सम्मानीय उपाचार्य महोदय आदरणीय भाषण प्रदान करिले আমি উপাচাৰ্য মহোদয়ক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ বাবে পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবঢ়াইছো আদৰণি গীত। পৰিৱেশন কৰিব ত্ৰিবেণী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে।
এটা অপূৰ্ব গীত আমাক তেওঁলোকে গাই শুনালে। তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আমি আহিছোঁ এতিয়া আদৰণি পৰ্ব এটালৈ। আমাৰ সন্মানীয় পঞ্জীয়ক মহোদয় আমাৰ লগত উপস্থিত হৈছে। তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আদৰণি আনিবৰ কাৰণে ছাৰ আহিছে। আমি ছাৰক আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভিকেবি নলবাৰীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ছাৰক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব। এয়া আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জীয়ক মহোদয় ডক্টৰ বিকাশ ভাৰ্গৱ শৰ্মা ছাৰ। ছাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অত্যন্ত ব্যস্ততাৰ মাজত ছাৰে কম সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে, ছিগনিফিকেন্স অফ দ্য ডে সম্পৰ্কে বক্তব্য প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ভিকেবি নলবাৰীৰ দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ মালব্য ছাৰক। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मंचे उपस्थिता कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, परीक्षा नियंत्रक महोदय एवं अन्य उपस्थिता आचार्यगण, विद्यार्थिनः, अभिभावकाः, अन्य छात्राश्च। अद्य अति हर्षस्य विषयः यत् वयं सर्वे अत्र उपस्थिताः स्मः। अतः सर्वेभ्यो उपस्थितेभ्यो नमस्कारं करोमि, वंदनं करोमि। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम सभी कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो भाषण था उसकी वार्षिक मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हमारे उपकुलपति महोदय ने कहा किस प्रकार आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने आज के ही दिन हमारी भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर उपस्थापित किया था और अपना लोहा मनवाया था कि हमारी संस्कृति किसी अन्य संस्कृति से कम नहीं है। लेकिन उसके पहले स्वामी विवेकानंद का वहां तक पहुंचने तक की जो यात्रा थी उसके बारे में जो कठिनाइयां थी थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जब परिव्राजक के रूप में पूरे भारत में परिक्रमा कर रहे थे और परिक्रमा करते करते भारत की स्थिति को उन्होंने देखा, भारत की दुर्दशा को देखा। जब इस दशा को, ये भारत की स्थिति को देखा, उन्हें ऐसा लगा कि हमारे लोग जो हैं अपने अस्तित्व भूल गए हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि वो भी कुछ हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं। यह जानकर स्वामी विवेकानंद बहुत दुखी हुए और इसी क्रम में वे कन्याकुमारी पहुंचे, जहां समुद्र के मध्य में शिला पर बैठकर 3 दिन तक उन्होंने ध्यान किया और वही 3 दिन जो था स्वामी विवेकानंद के जीवन को एक नया दिशा दिया था। पहला दिन जब भारत के पुरानी जो गौरवशाली इतिहास था उसको उन्होंने याद किया। दूसरा दिन वर्तमान स्थिति जो थी उसको याद किया और तीसरा दिन उन्होंने संकल्प लिया कि किस तरह से पुनः भारत को गौरवशाली स्थिति में लौटा सके, किस प्रकार फिर से विश्व मंच पर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सके। इसके लिए उन्होंने 3 दिन तक ध्यान किया। उसके बाद उन्हें मार्गदर्शन मिला उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस
के द्वारा उन्हें ऐसा आभास हुआ कि हमारे गुरु रामकृष्ण परमहंस जो है हमें आदेश दे रहे हैं और हमें मार्ग दिखा रहे हैं कि तुम जिस मार्ग पर आगे जाना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, उस पर आगे बढ़ो। और उसी संकल्प के साथ स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, शिकागो की यात्रा पर निकल गए और जहाज के माध्यम से कई देश होते हुए वे शिकागो पहुंचे। जब शिकागो पहुंचे उन्हें पता चला कि जो धर्म सभा होने वाली थी, यह धर्म सभा 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। स्वामी विवेकानंद लगभग जुलाई के अंत में वहां पहुंचे थे और जब यह पता चला कि 1 महीने तक स्थगित कर दिया गया है, तब उन्हें बहुत दुख हुआ। साथ साथ यह भी पता चला कि वहां पर एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि आप किस धर्म के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसका कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि स्वामी जी के पास नहीं था। और यह भी पता चला कि उसमें जो रजिस्ट्रेशन करने का समय था, अपना नाम वहां देने का जो समय था, वह भी निकल गया। बहुत दुख हुआ, फिर भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन शिकागो जैसा शहर जो था बहुत महंगा था। उनके पास जो भी पैसे थे बहुत ही कम दिनों में खत्म होने लगे। तो एक सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके साथ उन्होंने संपर्क किया कि कोई मदद मिले। उन लोगों ने कहा कि हम मदद जरूर देंगे, लेकिन आपको हमारे विचार को मानना पड़ेगा, हमारे सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। स्वामी जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके जितने भी सिद्धांत थे वे सारे के सारे मानने योग्य नहीं थे, और तब उन लोगों ने इन्हें कोई सहायता नहीं की। उसके बाद किसी मित्र ने उन्हें बताया तार के माध्यम से कि आप बोस्टन चले जाएं। बोस्टन शहर जो है वह शिकागो के अपेक्षा बहुत कम पैसों में वहां रहा जा सकता है, यानी कम खर्च में रहा जा सकता है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ट्रेन के माध्यम से बोस्टन जा रहे थे। उसी ट्रेन पर एक महिला जो संभ्रांत घर की थी, अच्छे घर की थी, धनाढ्य थी, उस महिला का नजर जाता है स्वामी जी के पास और उन्होंने देखा कि ये एक अजूबा व्यक्ति कौन है, कहां जा रहा है। उन्होंने जानने का प्रयास किया और उसके बाद स्वामी जी को आमंत्रित किया कि आप मेरे यहां आतिथ्य ग्रहण करें। स्वामी जी ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि यहाँ पर स्वामी जी सोच रहे थे मन ही मन कि यदि मैं इनका आतिथ्य स्वीकार कर लेता हूं तो मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। इनका मोटो था, स्वामी जी का ही मोटो था, लेकिन उस महिला का मोटो था कि मैं इनको लेकर के जाऊंगा, अपने जितने भी इष्ट मित्र हैं सबको बुलाऊंगा और बुला करके दिखाऊंगा कि देखो ये क्या चीज लेकर आया है, एक अजूबा चीज लेकर आया है जो इस प्रकार के वस्त्र पहनता है। दोनों का अपना मोटो था। स्वामी जी वहां पहुंच गए, लेकिन इसी क्रम में उस महिला का नाम था कैट सेनबॉर्न। इसी क्रम में क्या हुआ कि कुछ अच्छे लोग भी, गंभीर विचार वाले लोग भी वहां पहुंचे, जिसमें एक किसी कारागार की अध्यक्षा थी और एक थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर J.H. राइट। उन्होंने इनके बारे में जाना, इनसे बातचीत किया, इनसे बहुत सारे प्रश्न किए और इनके ज्ञान के बारे में उन्हें ऐसा जानकर ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही ज्ञानी महापुरुष हैं। और तब प्रोफेसर राइट ने उन्हें बताया कि आपको धर्म महासभा में भाग लेना चाहिए। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास तो कोई परिचय पत्र ही नहीं है, मेरे पास कोई कागज नहीं है, मैं कैसे भाग ले सकूंगा। प्रोफेसर राइट ने कहा कि आपसे परिचय पत्र पूछना ऐसा है जैसे सूर्य से यह पूछना कि तुमको चमकने का अधिकार किसने दिया है। और उसके बाद प्रोफेसर राइट ने स्वामी विवेकानंद के बारे में 3-4 लेटर लिखकर के उनको दिया। जो धर्म महासभा के आयोजन करने वाले लोग थे, जो अध्यक्ष थे, उनके नाम से लेकर दिया, एड्रेस दिया और स्वामी जी को दिया कि आप ये लेकर के जाइएगा और वहां देने से आपका काम हो जाएगा। एड्रेस भी दिया। उसके बाद उन्होंने ट्रेन का टिकट कटा करके दिया स्वामी जी को और 1 महीने के बाद स्वामी जी पुनः शिकागो यात्रा पर निकल गए। वहां जब गए हैं,
जैसे ही रात में ट्रेन से उतरा, उन्होंने वो एड्रेस और लेटर खोज रहे हैं। वो एड्रेस और लेटर जो दिया गया था उनके पास है ही नहीं, वो खो गया कहीं। अब उनके पास कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं था, कहां जाएं? तो वहीं पर उन्हें एक ट्रेन का गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी जो होता है उसका एक खाली डब्बा मिला। स्वामी जी ने सोचा कि चलो इसी में रात बिता लेते हैं, और स्वामी जी उसी डब्बे के अंदर रात में, ठंडा का दिन था, किसी भी तरह से बिना खाए पिए रात भर उस ट्रेन के डब्बे में बिताए। और जैसे ही सुबह हुआ फिर वहां से शिकागो के सड़कों पर निकल गए, यह पूछने के लिए कि जहां धर्म सभा होने वाली है वो जगह कहां है, एड्रेस पूछने के लिए। लेकिन उनके साथ लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसी ने कुछ बताया नहीं। अंत में थक करके एक जगह कहीं फुटपाथ पर बैठ गए। उसी समय एक संभ्रांत महिला अपनी खिड़की से उनको देखा और वो समझ गई कि जरूर यह कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ होगा जो धर्म सभा में जाना चाहता हो। वो आई, आकर के स्वामी जी के साथ बातचीत की, स्वामी जी ने सारी बातें बताई और वह महिला उनको अपने घर ले गई। उनका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू हेल, उस महिला का नाम था। वो अपने घर ले गई, उनको नाश्ता वगैरह कराया, खाना खिलाया, अच्छे से उनको रेस्ट करने के लिए दिया। जब रेस्ट हो गया उसके बाद स्वामी जी के साथ बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो धर्म महासभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बैरोच, वो मेरे जान पहचान के हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगी। और उसके बाद डब्ल्यू हेल ने स्वामी विवेकानंद को उस व्यक्ति के पास यानी अध्यक्ष के पास लेकर गई। उसके बाद स्वामी जी का काम आसान हो गया, स्वामी जी का नाम वहां पर रजिस्टर में लिख दिया गया। उसके बाद समय आता है 11 सितंबर 1893, 10 बजे से लगभग सभा आरंभ हुई। स्वामी जी का नंबर 21वां नंबर था वक्ताओं में, लेकिन उनके मन में बहुत घबराहट हो रही थी। उनको लग रहा था मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए वे रिक्वेस्ट कर रहे थे किसी भी तरह से मेरा नंबर और पीछे कर दिया जाए। ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हुआ, लेकिन अंत में बोलना तो था ही। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जब आए, अभी अभी हमारे उपकुलपति महोदय ने कहा कि उन्होंने जैसे संबोधित किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी बहनों और भाइयों, जैसे ही ये शब्द थे, ये शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे जादुई शब्द थे। जितने भी ऑडियंस में लगभग 7000 लोग वहां पर उपस्थित थे, उनके ऊपर एक जादू का काम किया और सब लोग खड़े होकर के तालियां बजाने लगे और यह तालियां लगभग 2 मिनट तक चलती रही। उनको लगा कि कोई अपना है जो हमें अपना कर रहा है, अपना भाई कह रहा है, अपना बहन कह रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग तो ऐसा बोलते नहीं है। ये अपनापन लोगों को लगा और सब लोगों ने स्वामी विवेकानंद को भरपूर प्यार दिया। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने जब भाषण दिया तो वहां के लोगों के मन में जो दुविधा थी उसको उन्होंने दूर किया। जो गलत धारणा है, जिसको नैरेटिव कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कई नैरेटिव वहां पर बस्ट किए, कई गलत धारणाओं को उन्होंने वहां पर ठीक किया। जो लोग मानते थे कि भारत जो है वह सपेरों का देश है, भारत जो है अनपढ़ों का देश है, भारत जो है वो असभ्यों का देश है, ऐसा जो लोग मानते थे, स्वामी विवेकानंद ने उन सबको गलत साबित किया। और मुख्य रूप से यह जो सभा का आयोजन हुआ था वह इसलिए था कि क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जो अमेरिका का खोज हुआ था उसकी 400वीं जयंती मनाई जा रही थी। और इस अवसर पर उनका यह मानना था कि इस अवसर पर हम जितने भी धर्म के लोग हैं सभी को यहाँ बुलाएंगे और यह सिद्ध करेंगे कि हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, सबसे ऊंचा है और यही श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। यह करने का प्रयास किया था उन लोगों ने। लेकिन स्वामी विवेकानंद को सुनने के बाद यह धारणा बदल गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा हमारा धर्म जो है सर्वसमावेशी है, हम सबको आमंत्रित करते हैं, सबके लिए खुला है, मंदिर है हमारा, ये सबके लिए खुला है, हम सब धर्मों को मानते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी की बुराइयां नहीं कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन मैं ये कहता हूं
कि जितने भी धर्म हैं सब अच्छे हैं, सबके अंदर अच्छाइयां हैं, सभी धर्मों से अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। और यह विचार जो था स्वामी जी का, वह पूरे विश्व में एकाएक फैल गया और सब लोग यहां तक आश्चर्यचकित करने लगे। सुबह का अखबार वहां का स्वामी विवेकानंद के बारे में एकदम न्यूज से भर गया। वहां का एक अखबार था, उसने लिखा कि भारत जैसे देश में मिशनरियों को भेजना सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोग वहां से आए हैं, ऐसे देश में मिशनरियों को भेजना नहीं चाहिए था। यहां तक जितने न्यूज़पेपर थे सब स्वामी विवेकानंद के भाषण से भर गए और उसके बाद स्वामी जी का एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक भाषण चलते रहा। उसके बाद कई महीने तक स्वामी विवेकानंद वहां रहे, यहां तक कि वहां की कोई कंपनी थी जो अलग अलग जगह में स्पीच कराती थी, वह स्वामी विवेकानंद को ऑफर किया कुछ पैसे आपको देंगे, लेकिन हम जहां जहां आयोजन करें आपको भाषण देना होगा। और स्वामी जी तैयार हो गए, क्योंकि स्वामी जी को भारत के लिए कुछ धन संग्रह करना था। और उसके बाद अलग अलग जगह में स्वामी जी ने बहुत भाषण दिए। उसके बारे में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बोलना है, लेकिन उतना नहीं बोलूंगा। आज का मुख्य यही था कि आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, अपने जो ट्रेडिशन है, अपने जो विरासत है, इसके ऊपर गर्व करना चाहिए। तो इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। তাৎপর্য সম্পৰ্কে খুব সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰাৰ বাবে মই BKBৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ মালৈ বৰদেৱক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহক আমি এটা নৃত্য উপভোগ কৰোঁ। নৃত্যটো পৰিৱেশন কৰিব কুমাৰ ভাস্কৰ বা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী পাৰ্চী শৰ্মাই।
তোলাৰ কাৰণে মায়াময় কৰি তোলাৰ কাৰণে মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত সাহিত্য বিভাগৰ ছাত্ৰী প্লাচিক শৰ্মাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ স্বামী বিবেকানন্দই চিকাগোত যিটো বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছিল সেই বক্তৃতাটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। বক্তৃতাটো প্ৰদান কৰিব ইংচিতৰাজ বৰুৱা, তেওঁ ভিকেবি নলবাৰীৰ ছাত্ৰ। আমাৰ মাজত এয়া স্বামী বিবেকানন্দ ৰূপে ইংচিতৰাজ বৰুৱা। ইংচিত Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which we have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religion, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of giving to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has touched the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all the religions and nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which indirectly lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilizations and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that a bell that told this morning in honor of this convention may be the death knell of all the fanaticism, of all the persecutions with the sword or with the pen, and of all the uncharitable feelings between persons wending their ways to the same goal. Thank you. ডক্টর রঞ্জিত কুমার তিৱাৰী দেৱে তেখেত সৰ্বদয় বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক
আমি ডক্টৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ তিৱাৰী দেৱক চমুকৈ তেওঁৰ ভাষণ আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंचे विराजमानः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलगुरवः आचार्य जोशी महाभागः, कुलसचिव महाभागः डॉक्टर विकास भार्गव शर्मा महाभागः, विवेकानंद केंद्र विद्यालयस्य सह प्राचार्यः माननीय मालवीय महोदयः, अन्य विवेकानंद केंद्र विद्यालयस्य अध्यापक अध्यापिकाः, छात्राः, अस्मद् विश्वविद्यालयीयाः शिक्षक शिक्षिकाः, छात्राः। यथा अद्य विश्व भ्रातृत्व दिवसः अस्ति, विश्व भ्रातृत्व दिवसस्य शुभाभिनन्दनानि अहं ज्ञापयितुम् इच्छामि। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि दिग्विजय दिवस के उपलक्ष्य में, विश्व भ्रातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर समवेत हुए हैं। हमारा एक संत अमेरिका की धरती पर जाकर शिकागो धर्म महासभा में जब व्याख्यान दिया था, उस व्याख्यान की हम 131वीं वर्षगांठ को प्राप्त हुए हैं। हमारे भारत एक पुण्य भूमि है। भारत मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। इस पुण्य भूमि में जब जब अधर्म व्याप्त होता है, पुण्य का ह्रास होता है, तब तब ऐसे संत महावीर महात्मा आते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में रविंद्रनाथ ने कहा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद। यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। स्वामी जी ने स्वयं कहा था कि मैं बिना आकार का आवाज हूं, आई एम वॉइस विदाउट ए फॉर्म। स्वामी जी भारतीय धर्म और संस्कृति के साथ साथ युग दर्शक श्री रामकृष्ण के वाणी मूर्ति थे। उनके वचन युग वाणी है। उनके संपूर्ण मानव जाति को अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शक है। जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने कहा था, अमेरिका की स्थापना के 400 वर्ष की पूर्ति 1993 ईस्वी में शिकागो शहर में हुआ। उस समय एक बड़ी साहब थे, उनके उद्योग से एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उस विशाल प्रदर्शनी में साहित्य, दर्शन, संगीत, कला, शिल्प, अर्थशास्त्र, कानून, नारी प्रगति इत्यादि विषय थे। उन्हीं विषयों में धर्म से संबंधित भी एक आलोचना चक्र की व्यवस्था किया गया था। और प्रथम में तो जो आयोजक थे, जो उद्योक्ता थे, उनको बहुत सारे वाद विवाद का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रश्न था धर्म एक है या अनेक है। धर्म बहुत तो हो नहीं सकता, जैसे सत्य बहुत नहीं हो सकते। इस तरह धर्म भी एक ही है। श्रेष्ठ धर्म एकमात्र धर्म है और वह है ईसाई धर्म। यह बात दूसरी है कि किसी ने भी इसको प्रमाणित नहीं कर सका, और इस बात को प्रमाणित करने की मंशा से जिस विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन सुनिश्चित किया गया था, किंतु किसी न किसी बहुत सारे ऐसे तो वहाँ वक्ता थे जो वक्ताओं ने कहा था मैं आऊँगा, लेकिन वे वक्ता समय से नहीं आ सके और वे अनुपस्थित रहे। और इस तरह से प्रकाश का स्रोत गहरे अंधकार में छिपा है। दूसरे शब्दों में गहरे अंधकार का अस्तित्व प्रकाश की महिमा को बढ़ाता है। शायद इसीलिए 19वीं सदी के मध्य में
भारत में उस ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ था जिन्होंने विश्व के सबसे प्रबुद्ध देश समकालीन अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध शिकागो धर्म सम्मेलन में अपना पदार्पण किया। भारत के इस ज्योतिषपुंज प्रकाश न केवल अमेरिका बल्कि संपूर्ण पश्चिम उज्जवल और समृद्ध हो गया। पश्चिम के हृदय में भारत की पवित्र भूमि के अद्भुत दृश्यों से सामूहिक प्रकाश फैल गया। जिस शख्स की बात हो रही है वह आप सब जानते हो और कोई नहीं, युगाचार्य स्वामी विवेकानंद, जो समग्र ज्ञान प्रकाश के अवतार हैं, जिसने भारतवर्ष के उस धर्म के आधार पर जो कभी विश्व धर्म बन गया था, समसामयिक धर्म के पूर्ण भूमि भारतवर्ष की विजय पताका विश्व दरबार में लहराई थी, जिसके कारण हम विश्व गुरु थे। यह धर्म महासभा में स्वामी जी के भाषण के बारे में कहा जा सकता है। जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो उनका विषय हिंदुओं का धर्म भाव था, लेकिन जब उन्होंने समाप्त किया तो हिंदू धर्म ने एक नया स्वरूप ले लिया था, ऐसा भगिनी निवेदिता ने कहा। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व सम्मेलन के अवसर पर धर्म महासभा का सम्मेलन जो हुआ था, उसमें शिकागो वासियों ने दुनिया के प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया और वहां पर तय समय में जो स्वामी विवेकानंद ने विश्व के असंख्य धर्म पिपासुओं के रूप में जो हिंदू धर्म के बारे में अपने विचारों को स्थापित किया, जिसने सभी प्रकार के सांप्रदायिक दृष्टिकोण को अतिक्रम किया और स्वयं को विश्व धर्म के एक अद्वितीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद के साथ हम स्वाभाविक रूप से उनके धार्मिक विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका मुख्य बिंदु क्या था जिसने उस दिन विश्व धर्म की स्थापना की। विश्व के अधिकांश लोग उसी धार्मिक समुदाय के हैं जिन्होंने स्वामी जी का अपने हृदय से स्वागत किया, परंतु यह निष्कलंक विजय नहीं थी। आलोचनाएं और प्रतिकूल टिप्पणियां तो हुई, परंतु कट्टरता के समर्थन में आगे बढ़ाए गए कथानकों के अपार जन समर्थन और शुद्ध धार्मिक भावना के प्रचंड सैलाब ने तिनके की तरह उड़ा दिया था। देश काल पात्र यह ऐसा है मानो दुनिया ने विभाज्य धर्म का विचार सबसे पहले किसी मिशनरी के मुंह से सुन लिया हो, लेकिन व्याख्या इस तरह समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसी विषय के केवल एक पहलू का अवलोकन करने से आज के जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, उनकी जिज्ञासा समाप्त नहीं की जा सकती। इसलिए स्वामी विवेकानंद का दर्शन शिकागो धर्म सभा में दिए गए विभिन्न प्रवचनों में निहित था। इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर शोध आज भी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद के परिचय ने सबसे पहले हमारा ध्यान खींचा उस धर्म महासभा में जो अन्य सभी से भिन्न और अत्यंत उदार था। उन्होंने अपने देश, धर्म और अपने व्यक्तित्व के अद्भुत समन्वय से अपना परिचय पूरा करते हुए कहा था, मुझे उस धर्म से होने पर गर्व है जो हमेशा से दुनिया को सहिष्णुता और सभी लोगों को स्वीकार करने की शिक्षा देता रहा है, जिसके लिए पवित्र शब्द बहिष्करण एवं परिवर्तन है, जिसका अनुवाद नहीं किया जा सकता है। मैं उस धर्म से हूँ, उस धर्म पर मुझे गर्व है। मुझे आपको ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने यहूदियों के पवित्र वंशजों के अवशेषों को अपने दिलों में रखा है, जिन्होंने उस वर्ष हमारे यहाँ शरण ली थी जिसमें उनका पवित्र मंदिर था। रोमनों के भयंकर अत्याचार से नष्ट हो गए। मैं उनमें से एक हूँ जिन्होंने दान दिया और आज तक उनका पालन पोषण कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने अपने देश, उदारता और समृद्धि का जो चित्रण किया है वह उतना ही गहरा है। जो भी हो, यह स्वीकार करना होगा कि समकालीन समय में दर्शक स्वामी विवेकानंद को भारत के प्रति एक प्रकार की अंतर्निहित भावना के साथ उनके लिए स्वामी जी की पहचान हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, के प्रतिनिधि के रूप में किया गया था, जो भारतवर्ष नामक उपनिवेश में प्रचलित धर्म था। जिस देश में सुनने वालों के मन में यह बात कर गई हो कि उस देश में सर्वत्र अशिक्षा, जातिवाद और नारी के प्रति असम्मान का बोलबाला है। अंग्रेजों ने अंधे और अंधविश्वासी अनपढ़ बर्बर देशवासियों को पुनर्जागरण की रोशनी देने के लिए वहाँ उपनिवेश की स्थापना की हो। ऐसे विचारशील दर्शकों के सामने विवेकानंद की स्थिति ने एक नई सोच को जन्म दिया।
क्योंकि उस व्यक्तित्व का ज्ञान किसी अन्य देश के विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होता है। जिन लोगों ने मानव धर्म की नई व्याख्या दी वह ज्ञान अक्षय है। भारत का धन, लेकिन दुनिया के सामने भारत को बर्बर अशिक्षित कहा गया था। यह पहली बार है जब किसी ने औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के ध्रुवीकरण की साजिश को पर करारा प्रहार किया था। भारत के प्रति दृष्टिकोण बदला। इससे न केवल भारत को लाभ हुआ बल्कि विश्व के लोगों को भी विश्व के नए प्रेम के पात्र को पहचानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर एक नए इतिहास की शुरुआत हुई जिसके अनेक रूप आज भी विद्यमान है। समय की निरंतर यात्रा में कुछ अविस्मरणीय क्षण जन्म लेते हैं जो समय की निरंतर अनंत शक्ति को अपनी ही पहचान में सार्थक बनाते हैं। 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद का पहला परिचयात्मक भाषण एक ऐसा ही क्षण जिसकी विजय का समय तो नहीं भूला, लेकिन उनकी यात्रा की गूंज दुनिया के हर व्यक्ति में जागृत हो गई है। एक सन्यासी हिंदू भिक्षु भारत में राष्ट्रवाद को जगाने और पश्चिम में वेदांत और योग को पेश करने में सहायक थे। वे आधुनिक समय में जनता के लिए बोलने वाले पहले आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य की दिव्यता पर बहुत जोर दिया और धर्म के सार्वभौमिकता के विचार का वकालत किया। विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जो पश्चिम गए और भारत को भारतीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। प्रख्यात इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर A.L. बाशम ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक दुनिया के मुख्य निर्माताओं में से एक ऐसा कहकर वर्णित किया। 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के तहत औसत भारतीय की दुर्दशा से बहुत दुखी थे। उन्होंने पूरे भारत में अपनी व्यापक यात्रा के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों की स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन किया था। विवेकानंद के पास भारत को जगत गुरु बनाने का सपना था और वह एक मिशन पर भी थे। भारत माता के खोए हुए गौरव को बहाल करने और पूरी दुनिया में वेदांत के शाश्वत संदेश को फैलाने का मिशन। वास्तव में शिकागो में उनके व्याख्यान एक गेम चेंजर थे। इसने भारत के बारे में पश्चिम की धारणा को बदल दिया। विवेकानंद ने जो धर्म संसद में 6 व्याख्यान दिए जिन्हें हम आमतौर पर शिकागो भाषण कहते हैं। उनके प्रसिद्ध शिकागो भाषण में जिन सिद्ध प्रमुख बिंदुओं पर उन्होंने बात की उनमें से कुछ विश्लेषण करने से पहले इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्वामी विवेकानंद जब गए थे अमेरिका तब उनकी आयु 30 वर्ष थी और वे बिना बुलाए चले गए थे और उन्हें सार्वजनिक भाषण देने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। जाहिर है जब 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद के उद्घाटन के दिन यानी फैसले का दिन आया तो विवेकानंद काफी घबराए हुए थे। उन्होंने आयोजकों से अनुरोध किया, जैसा कि सर ने भी पहले बताया, कि वे कार्यक्रम के अंतिम भाग में उनका नाम घोषित करें। शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट के विशाल हॉल में 7,000 लोगों की भीड़ थी। जब आखिरकार उनकी बारी आई तो उन्होंने मन ही मन विद्या की देवी सरस्वती को नमन किया और अपना संबोधन अमेरिका के बहनों एवं भाइयों शब्द से शुरू किया। तुरंत ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी जो पूरे 2 मिनट तक जारी रही। वास्तव में स्वामी जी इन द्वीप को छू लेने वाले शब्दों से दर्शकों के साथ तुरंत जुड़ाव स्थापित करने में सक्षम थे। अमेरिकी उपन्यासकार क्रिस्टोफर ईशरवुड के अनुसार जब विवेकानंद ने कहा बहनों और भाइयों तो उनका वास्तव में मतलब था कि वे अपने सामने खड़ी अमेरिकी महिलाओं और पुरुषों को बहन और भाई मानते थे। यह प्रसिद्ध परिचालन वाक्यांश बन गया। सरल सत्य। अपने पहले भाषण में विवेकानंद ने सहिष्णुता, स्वीकार्यता और धर्मों की सार्वभौमिकता के विचार पर जोर दिया और उन्होंने इस 3 बातों की जोरों से घोषणा की। मुझे ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता स्वीकृति दोनों सिखाई है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि हम सभी धर्मों के सत्य को के रूप में स्वीकार करते हैं। युवा सन्यासी की परिपक्वता और अनुभूति के स्तर की ही नहीं बल्कि उनके विशाल और गौरवशाली ज्ञान की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर इतनी बड़ी और गौरवशाली सभा के समक्ष भाषण दिया। उपसर्जन
নলবাৰী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় পৰীক্ষাসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰক ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই বিশেষ একো নকওঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও বক্তাই তেখেতসকলৰ সাৱলীল ভাষাৰে আজিৰ এই দিৱসৰ তাৎপৰ্য, স্বামী বিবেকানন্দৰ দৰ্শন, তেখেতৰ বিশ্বভাতৃত্বৰ মনোভাৱ আৰু ধাৰণা সুন্দৰকৈ ব্যক্ত কৰিছে। মই মাত্ৰ এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই যে আৰম্ভ হ'ল এখন সাঁকো বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় আৰু কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত, এই সাঁকো যেন সদায় সুদৃঢ় হৈ থাকে, অটুট থাকে। কাৰণ এই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকৰ স্কুলৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, খনখন মইনাহঁত, তোমালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমান সুন্দৰ তোমালোকৰ সাৱলীল পাৰফৰ্মেঞ্চ, গীত গাইছা, স্বামীজীৰ ভাষণ ইমান ভালকৈ তোমালোকে ইয়াত কৰিছা, মোৰ বৰ ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰোঁ যে তোমালোকে বহুত কষ্ট কৰি ইয়ালৈ আহিছা। বিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যি যাত্ৰা, আমি আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকক আমি এদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাবলৈ পাম। আৰু মই যেতিয়া শিলচৰত আছিলোঁ প্ৰায়ে দেখিছিলোঁ যে গুৰুচৰণ মহাবিদ্যালয়ত তাৰ ওচৰতে থকা কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ে প্ৰতি বছৰে এই অনুষ্ঠানটো পালন কৰে। আৰু নলবাৰীত অহাৰ পিছত মইতো অকণমান ধৰিব পৰা নাছিলোঁ কিয় নহয়, কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰপ'জেলটো লৈ আহিলে আমি খুব আগ্ৰহেৰে আমি অনুমতিও প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ উপস্থিতিও তাত থাকিব বুলি কৈছিলোঁ। যা নহওক, এই গোটেই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত কৰিবলৈ অহাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু স্বামীজী এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিত্ব, সেনেকুৱা ব্যক্তিত্ব নথকা হ'লে ভাৰতবৰ্ষই হয়তো স্বকীয় সংস্কৃতি, ইয়াৰ নিজস্ব স্বভাৱ আজিলৈকে আমি বৰ্তাই ৰাখিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। বিশেষ কথা নকওঁ, সময় দীঘলীয়া হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঘৰত যাব লাগিব। এইখিনি কৈ পুনৰবাৰ আটাইলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ ক্ষুদ্ৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Shaya Dhimani,
আমি মন্দির উৎসৱ ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। আমি আহি অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়ত উপস্থিত হৈছোঁ। এইবাৰ আছে ভোট অফ থেংকছ। ধন্যবাদ বা শলাগৰ হৈ আগবঢ়াব এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ তত্ত্বাৱধায়ক অন্যতম তত্ত্বাৱধায়ক ডক্টৰ অৰ্পণা ৰামচিয়াৰী। তেখেত Yes, we have reached the end of the program, so I'd like to give the vote of thanks. So, first of all, I'd like to thank the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor of this university, Professor Pranad R. Joshi sir, for inaugurating the sessions with your precious words. And secondly, I'd like to thank respected Dr. Vikas Goswami sir for blessing the event with your precious words. And also, I'd like to thank today's distinguished speaker and also the controller of examination, Dr. Ranjit Kumar Tiwari sir, for blessing the event with your precious words. And the literal purpose of organizing this program is to promote the equal treatment of all people and also the mutual respect towards the people regardless of culture, creed, caste, religion, etc. And also I'd like to thank the Vice Principal of Vivekananda Kendriya Vidyalaya Nalbari, Sri Devendra Kumar Malavia, Malavia sir, for blessing the event with your precious words. And thank you so much sir for taking us to the life history of Vivekananda. So thank you so much sir. And also I'd like to thank the teachers of these institutions and also the teachers of Kendriya Vidyalaya Nalbari for participating and blessing the events. And also I'd like to thank the students of this university and also the students of Kendriya Vidyalaya Nalbari for blessing the event with your wonderful performances. And without your active participations, this event would not have been successful. So thank you so much, sir. And lastly, I would like to thank our cultural officers. Also, head of the department of Assamese department, Dr. Ajit Murali sir, for anchoring the session, this program, and running the program smoothly. So thank you so much, sir. And yes, we are over the program. So thank you. Okay, now we are going to perform the Sankhi Mandlo and students of DKV Nalbari.